Hello friends and everyone, welcome to you all to Inspire Civils, an e-learning platform which provides coaching for all major competitive examinations across the country, whether it's UPSC, whether it is SSC, or whether it is JKSSB, or for that matter of fact the State Public Service Commission examinations. I'm your host for the Indian Polity and Governance series, Sohail Yusuf, and today we're going to take up one more lecture out of the constitutional bodies. Since we have already covered the UPSC election commission, then we also talked about the Comptroller and Auditor General. Then we talked about Finance Commission. Now today we're going to take up a very important body, which is in fact being considered as the highest law officer of the country, and we're going to talk about the Attorney General, right? We're going to talk about the Attorney General, and apart from Attorney General, we're also going to talk about the Solicitor General, right? So these two topics are lined up for the discussion today. So firstly, let's talk about what who is the Attorney General. Currently K.K. Venugopal is the Attorney General of India, right? And उससे पहले जो थे Mukul Rohtangi was the he is basically preceded by the Mukul Rohtangi. Now Attorney General basically is the highest law officer of the country, as we have already said. Attorney General जो होता है Attorney General of India is basically the highest law officer of the country, and apart from that Attorney General is the Indian government's chief legal advisor. ये मतलब chief legal advisor होते हैं और इनका एक तरीके से ये प्राइमरी लॉयर होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और ये जो है लॉयर होते हैं एंड ही इज फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में इनका जिक्र जो है वो आर्टिकल 76 में किया गया है. आर्टिकल 76 basically talks about the office of the Attorney General, and as we have already said that he is the highest law officer of the country. Now जब हम यूनियन एग्जीक्यूटिव का डिस्कशन कर रहे थे तो हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव में कहा था कि जो मेन जो कंपोनेंट्स होते हैं या मेन जो पोजीशंस होती है यूनियन एग्जीक्यूटिव में वो किस किस की होती है. तो उनमें तो यूनियन एग्जीक्यूटिव की जब हम बात कर रहे थे फ्रॉम आर्टिकल 52 टू 78, तो वहाँ पे हमने कहा कि जो ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल इट्स अंडर द आर्टिकल 76, यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव का एक इंटीग्रल पार्ट होता है अटॉर्नी जनरल, राइट? ही इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री एंड ही इज़ पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, इंटीग्रल पार्ट जिसे कह सकते हैं. तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? यूनियन एग्जीक्यूटिव में एक तो प्रेसिडेंट आते हैं, ठीक है जी, एक तो प्रेसिडेंट आते हैं. अपार्ट फ्रॉम प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इज देयर. देन यू हैव गॉट प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड देन यू हैव गॉट द अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया, राइट? तो ये पोजीशंस है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर कर रखी है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से जो ऑफिसर्स है वो आएंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट the other things related to the Attorney General of India. Now, as far as the appointment and term of the Office of Attorney General of India is concerned, now, Attorney General जो है पहले हम बात करते हैं appointment की, right? तो as far as his appointment is concerned, he is appointed by whom? He is appointed by President. तो President appoint करता है and he remains in office till the pleasure of the President, यानी कि कोई स्पेशल प्रोसीजर नहीं है रिमूवल का, कुछ नहीं है. whenever president decides that he has to leave the office, he has to leave the office. And apart from it, he should be a qualified judge, right? To hold the office or to be eligible for the office of to be eligible for the office of the Attorney General of India, he should be qualified to be appointed as the judge of the Supreme Court. जिसका मतलब ये है कि that he should be I will not say that he should be a judge, but he should possess the qualification to be a judge. उनके पास वो qualifications होनी चाहिए
so that he can become the judge of Supreme Court, right? तो ये qualification काफ़ी ज़रूरी है to get appointed to the highest law to get appointed to the highest law officer's position of the country. Then he must be citizen of India, which is very important. He should be citizen of India, right? And apart from that, he must have been a judge of some high court for 5 years, right? तो वो होने चाहिए judge of high court for 5 years. This is another very important condition. And apart from that, ये जो ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब ये कब तक रहेंगे, ये कैसे रहेंगे, इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन नहीं किया गया है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो किस मुद्दत तक रहेंगे। जैसे कि बाकी पोस्ट के लिए के कहा गया था 6 years और 65 years, विच एवर इज अर्लियर, राइट। करंट जो हमारे ये हैं, क्या नाम है इनका, अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल, तो उनकी टर्म आर्बिट्रली 3 साल की है। जब तक की गवर्नमेंट है तब तक वो भी रहेंगे। जैसे ही गवर्नमेंट जो है, जैसे ही लोकसभा के इलेक्शंस होंगे या जैसे ही गवर्नमेंट जो है वो रिज़ाइन देती है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिज़ाइन करते हैं, तो उसके साथ ही उनका रेजिग्नेशन होता है। जनरली वो उनके साथ ही निकलते हैं। इसके अलावा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई मतलब प्रोसीजर या ग्राउंड्स नहीं मेंशन किए गए हैं। देयर आर नो ग्राउंड्स, कोई ग्राउंड मेंशन नहीं किया गया है। नो ग्राउंड्स मेंशनड फॉर द रिमूवल ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि ही रिमेन्स एट द मर्सी ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जब चाहे वो प्रेसिडेंट जो है उनको रिमूव कर सकते हैं। दिस इज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज फार एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज कंसर्न। तो जैसे हमने कहा, कन्वेंशनली जो 5 साल की टर्म होती है गवर्नमेंट की, वो उसके साथ ही चले जाते हैं। या गवर्नमेंट के खिलाफ अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आती है और गवर्नमेंट जो है वो कॉन्फिडेंस अपना लूज करते हैं पार्लियामेंट को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिज़ाइन करते हैं, तो उस केस में भी, या पीएम रिज़ाइन करते हैं, तो उस केस में भी ये अटॉर्नी जनरल जो है इनको अपना ऑफिस जो है वो छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये जो अपॉइंटमेंट इनकी होती है कन्वेंशनली, जो कैबिनेट होता है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, तो इनकी मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये इनकी एडवाइस पे अपॉइंट हुए होते हैं। तो जैसे ही गवर्नमेंट का टेन्योर ख़त्म होता है, तो ये जो अटॉर्नी जनरल है उनको अपना ऑफिस रिलिंक्विश करना पड़ता है, इनको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ता है। तो अब ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या ड्यूटीज़ और फंक्शंस क्या दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो ड्यूटीज़, जहाँ तक ड्यूटीज़ का सवाल है, हम पहले ड्यूटीज़ के बारे में बात करते हैं। तो जहाँ तक इनकी ड्यूटीज़ का सवाल है, 1 second, लेट मी रब इट ऑफ। तो जहाँ तक इनकी ड्यूटीज़ का सवाल है कि क्या क्या फंक्शंस ये परफॉर्म करते हैं, राइट, ड्यूटीज़ के बारे में आप देख लेते हैं। तो ड्यूटीज पहला जो है इनका, ही गिव्स एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये एडवाइस देते हैं टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स। जो भी लीगल मैटर्स होते हैं उनके ऊपर एडवाइस जो होती है वो इनकी होती है, या कोई मैटर जो कि प्रेसिडेंट जो है विच आर रेफर्ड टू हिम बाय द प्रेसिडेंट। दूसरा जो पॉइंट है, दैट इज द सेकंड पॉइंट हियर इज that he has to perform, or he performs other duties of legal character which are assigned to him by the president। एक तो गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस देना, और दूसरा अगर प्रेसिडेंट से कोई लीगल काम सौंप देता है तो ये जो है ये वो फंक्शंस भी परफॉर्म कर लेता है। तीसरा, ये डिस्चार्ज करता है द फंक्शंस विच आर कन्फर्ड ऑन टू हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन या कोई और लॉ। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके ऊपर कोई काम जो है बाइंड कर रखा है कि आपको ये काम परफॉर्म करना पड़ेगा, बीइंग द अटॉर्नी जनरल, देन ही हैज़ टू परफॉर्म दोज फंक्शंस आल्सो। और इसके अलावा प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट ने अब क्या क्या ड्यूटीज़ जो है, हमने कहा दूसरी फंक्शन जो है, दूसरे पे हमने कहा कि प्रेसिडेंट ने कुछ लीगल फंक्शंस जो है वो असाइन कर रखी हैं। तो प्रेसिडेंट ने कुछ लीगल फंक्शंस असाइन कर रखी है। प्रेसिडेंट जो है वो उनको बोलते हैं कि कुछ लीगल फंक्शन जो है आपको परफॉर्म करनी है। अब कौन कौन सी लीगल फंक्शंस प्रेसिडेंट ने रखी हुई है। पहला
he has to appear on behalf of the government of India in all cases in the Supreme Court जहाँ पर कि government of India concerned है, यानी कि Supreme Court में he will act as a lawyer for the government of India। जैसे कि 35A का केस आया था सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के लिए, ट्रिपल तलाक का केस आया था, या बाकी जिनके ऊपर गवर्नमेंट का स्टैंड जो है वो मतलब एक तरीके से जहाँ पर कि गवर्नमेंट का स्टैंड जो है वो फर्म है किसी चीज़ के ऊपर, तो वहाँ पर या गवर्नमेंट का एक तरीके से जो लॉ ऑफिसर होता है वो यही होता है अटॉर्नी जनरल, और ये गवर्नमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में he fights the cases। The second thing is he has to represent the government of India in any reference which is made by President to the Supreme Court under Article 143 of the Constitution। ठीक है जी, तो कोई भी रेफरेंस जो कि प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को अंडर 143 एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन जो है जहाँ पर कि प्रेसिडेंट को जो है सुप्रीम कोर्ट टेंडर करता है एडवाइस, तो उस केस में भी ही अपीयर्स बिफोर द और ही रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया for any reference in which president seeks advice from the Supreme Court। Then third thing is that he has to appear or he appears in any high court in any high court in any case in which government of India is concerned। तो अगर states और union के बीच में केस चल रहा है तो उस केस में भी he has to appear, जिस हाई कोर्ट में स्टेट का केस चल रहा है तो वो वहाँ पर उनको अपीयर होना पड़ेगा। तो ये तीन एक तरीके से ड्यूटीज़ या फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करनी पड़ती हैं उनको। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट द राइट्स एंड लिमिटेशंस। तो जो ऑफिशियल ड्यूटीज जब वो परफॉर्म कर रहे होते हैं अपनी, तो ये जो अटॉर्नी जनरल है ही हैज़ गॉट राइट टू ऑडियंस, यानी कि वो बैठ सकते हैं मीटिंग्स में, जितनी सारी मीटिंग्स जो है कोर्ट्स में जो हो रहा है, हियरिंग्स हो रही है, तो जितने कोर्ट्स हैं वो ही हैज़ गॉट राइट टू ऑडियंस इन द कोर्ट्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ही हैज़ गॉट, एक तो कोर्ट्स में वो राइट टू ऑडियंस होल्ड करते हैं, दूसरा जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही है बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट या जॉइंट सिटिंग या कोई भी कमेटी जो पार्लियामेंट की है जिसमें कि उनका नाम आया है एंड ही मे बी नेम्ड एज अ मेंबर, ठीक है, तो वहाँ पर वो जा सकते हैं, वहाँ पर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो किसी कमेटी में, कोर्ट में, या जो प्रोसीडिंग्स हो रही है, ठीक है, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, या चाहे मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए तो एडवोकेट जनरल है, ठीक है जी, एडवोकेट जनरल ही होल्ड्स द राइट टू, एक तरीके से। तो ये चीज़ें मतलब यहाँ पर कोर्ट्स में ऑल ओवर इंडिया जितने सारे कोर्ट्स हैं वहाँ पर राइट ऑडियंस होल्ड करते हैं, और कमिटीज जिनके वो मेंबर होते हैं वहाँ पर वो पार्टिसिपेट करते हैं, और जो प्रोसीडिंग्स होती है चाहे लोकसभा की हो, राज्यसभा की हो, वहाँ पर भी वो पार्टिसिपेट करते हैं। बट ही डज नॉट he doesn't have a right to vote, he doesn't possess the right to vote, यानी कि वो वोट नहीं करते हैं, no right to vote, ठीक है। नाउ कुछ लिमिटेशंस जो है वो अटॉर्नी जनरल में मतलब उनके ऊपर रखी गई है। तो पहला चीज़ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ एडवाइस नहीं करना चाहिए किसी को भी। दूसरा चीज़, ही शुड नॉट एडवाइस और होल्ड अ ब्रीफ in cases in which he is called upon to advise or appear for government of India। और दूसरा वो केसेस उनको डिफेंड नहीं करना चाहिए क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि वो गवर्नमेंट के ऑफिसर है तो उनको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फर्दर ही शुड नॉट एक्सेप्ट एनी अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी कॉर्पोरेशन विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उससे लेनी पड़ती है अगर वो क्रिमिनल केसेस लड़ते हैं, या अगर वो कोई ऑफिस एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो उस केस में भी उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन जो अटॉर्नी जनरल होते हैं ये फुल टाइम काउंसिल नहीं होता है गवर्नमेंट का, और ये एक तरीके से गवर्नमेंट सर्वेंट्स की कैटेगरी में फॉल नहीं करता है, और ये प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। ही कैन कंटिन्यू द प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस, ठीक है जी। तो ये हो गया अटॉर्नी जनरल का। अब इसके अलावा अटॉर्नी जनरल के अलावा एक और जो सब्जेक्ट है इसमें, और एक और टॉपिक जो है वो छोटा सा टॉपिक है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का। नाउ हु इज द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया?
राइट, ये पोजीशन क्या होती है। तो ये जो सॉलिसिटर जनरल होता है, इन एडिशन टू अटॉर्नी जनरल, कुछ और लॉ ऑफिसर्स होते हैं गवर्नमेंट के, और वो सॉलिसिटर जनरल, एक तो सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, राइट, एक तो सॉलिसिटर जनरल और दूसरा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये दोनों का काम क्या होता है, ये असिस्ट करते हैं जो भी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, तो ये अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करते हैं। दे एड एंड असिस्ट द अटॉर्नी जनरल इन परफॉर्मेंस ऑफ द ऑफिशियल ड्यूटीज़। तो जो भी ऑफिशियल ड्यूटीज़ इनको परफॉर्म कर रही है उनको एड असिस्ट करते हैं। ठीक है जी। तो ये यहाँ पर हमें नोट करना चाहिए कि ये जो ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल है, खाली ये कॉन्स्टिट्यूशन ने क्रिएट किया हुआ है। तो 76 आर्टिकल 76 में कोई मेंशन नहीं है, ना सॉलिसिटर जनरल का ना एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का। तो अपार्ट फ्रॉम इट, ये जो अटॉर्नी जनरल है ये मेंबर नहीं होता है कैबिनेट का, उसके लिए एक सेपरेट लॉ मिनिस्टर होते हैं जो कि एक तरीके से मेंबर होते हैं कैबिनेट के। तो this ends our discussion on Attorney General. Do spread a word about our initiative, our free education initiative. Thank you very much for participating in today's discussion.